آپ کو بتائیں کہ کراچی بار ایسوسی ایشن سالانہ انتخابات غیر حتمی نتائج کے مطابق صدارتی نشست پر عامر نواز وڑائچ کامیاب، نائب صدر کی نشست پر نصر اللہ جلبانی فاتح، جنرل سیکرٹری کی نشست اختیار چنا کامیاب، خزانچی کی نشست پر راحیل سمسام کامیاب ہو گئے۔ عامر نواز وڑائچ نے 600 سے زائد ووٹ سے نعیم قریشی کو شکست دی۔ نائب صدر کی نشست پر نصر اللہ جلبانی فاتح، جنرل سیکرٹری کی نشست اختیار چنا کامیاب، خزانچی کی نشست پر راحیل سمسام کامیاب ہو گئے۔ لائبریرین کی نشست پر کاشف امجد کامیاب۔ عامر نواز وڑائچ کے حامیوں کی جانب سے مٹھائیاں تقسیم، ہوائی فائرنگ بھی کی گئی۔ تفصیلات جانیں گے جواد آصف سے جو وہاں پر موجود ہیں۔ اس وقت بھی جو ہے وہ ہمیں سٹی کورٹ میں بالکل گہما گہمی نظر آتی ہیں۔ وکلا میرے ساتھ موجود ہیں، بات کرتے ہیں۔ بتائیے گا کہ عامر نواز صاحب جو ہے کامیاب ہو چکے ہیں، کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ؟ کراچی بار جو ہے یہ ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے۔ کشمیر سے لے کے کراچی تک یہاں پر ہر خطے کا وکیل موجود ہے، اور یہاں پر کوئی ایسا نہیں کہ کوئی مخصوص گروپ یا کوئی مخصوص قومیت کی اجارہ داری ہے۔ یہ کراچی بار ایک گلدستہ ہے۔ کراچی کو ہم منی پاکستان کہتے ہیں، اسی طریقے سے کراچی بار بھی ایک منی پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے۔ عامر نواز کی جیت آج اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ کشمیر سے لے کے کراچی تک کے وکلا کی جیت ہوئی، ایک عام وکیل کی جیت ہوئی ہے، اور ہم آئندہ توقع بھی رکھتے ہیں عامر نواز سے کہ وہ اس جیت کی مد میں جو ان پر ذمہ داریاں عائد ہوئی ہیں وہ ان کو پورا کریں گے۔ کانگریٹس ٹو عامر وڑائچ، وہ صدر منتخب ہوئے ہیں، دوستوں کا الیکشن تھا، جو جیتے ہیں ان کو ڈھیر ساری مبارکباد، اور جو رہ گئے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کے لیے تیاری کریں، وہ بھی ہمارے دوست ہیں، ان کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، اور جو الیکٹڈ باڈی ہے ان کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں عامر وڑائچ صاحب سے کہ جی وہ آنے والے وقت میں ویلفیئر کے حوالے سے انشاءاللہ ایک اچھا قدم اٹھائیں گے اور اچھا کردار ادا کریں گے۔ تھینک یو۔ تو دیکھا آپ نے ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ انہوں نے مبارکباد بھی دی ہے جیتنے والے امیدواروں کو، جبکہ یہ امید بھی ظاہر کیے ہیں کہ اب جب وہ کرسی پر اب بیٹھنے جا رہے ہیں تو جو انہوں نے وعدے دعوے کیے تھے وہ انہیں پورا کریں گے، اور وکلا برادری کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے۔ انہوں نے اپنے منشور میں شامل کیا تھا کہ وکلا کو جو ہے وہ تعلیم سے آراستہ کریں گے، ان کے جو ہے وہ سوسائٹی کے لیے بھی وہ عمل پیرا رہیں گے، جبکہ انہیں طبی سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی۔ اور اب وکلا نے عامر نواز کو منتخب کر لیا ہے۔ جنرل سیکرٹری کی نشست جو سب سے اہم ہوتی ہے دوسرے نمبر پر، اس پر اختیار علی چنا فاتح قرار پائے ہیں، نائب صدر نصر اللہ جلبانی، جبکہ خزانچی کی نشست پر راحیل سمسام علی خان منتخب ہو چکے ہیں۔ اور اس وقت سٹی کورٹ میں ایک جشن کا سما ہے، گانے بھی بج رہے ہیں، فائرنگ بھی ہو رہی ہے، مٹھائیاں بھی تقسیم کی جا رہی ہیں، خوشیاں بھی منائی جا رہی ہیں، گلے لگائے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے وہ مبارکباد بھی دی جا رہی ہے، گویا ایک عید کا سا سما یہاں پر چھایا ہوا ہے۔ جی، ملیر بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات غیر حتمی نتائج سب سے پہلے سیری 21 پر صدر کی نشست پر ناصر رضا رن 345 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ راؤ زاہد علی 307 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو کہ ملیر بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات غیر حتمی نتائج سب سے پہلے سٹی 21 پر صدر کی نشست پر ناصر رضا رن 345 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کی تیاریاں تیز ہو گئیں۔ صوبائی الیکشن کمشنر سندھ شریف اللہ کا کہنا ہے انتخابات کے صاف، شفاف، آزادانہ اور منصفانہ انعقاد کے لیے تمام تر وسائل کو بروئے کار لایا جائے گا۔ انتخابات کا شیڈیول جاری ہو چکا، پورا ملک انتخابات کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ صوبائی الیکشن کمشنر سندھ شریف اللہ کی کمشنر کراچی محمد سلیم راجپوت سے ملاقات۔ انتخابات کے پرامن، صاف و شفاف اور غیر منصفانہ انعقاد کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ کمشنر کراچی نے صوبائی الیکشن کمشنر سندھ کو چارج سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ صوبائی الیکشن کمشنر سندھ شریف اللہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے گریڈ 21 کے افسر ہیں۔ سندھ میں تعیناتی سے قبل وہ بلوچستان میں تعینات تھے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ اس حوالے سے کہ صوبائی الیکشن کمشنر سندھ شریف اللہ کی کمشنر کراچی محمد سلیم راجپوت سے ملاقات ہوئی ہے۔ انتخابات کے پرامن، صاف و شفاف اور منصفانہ انعقاد کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ کمشنر کراچی نے صوبائی الیکشن کمشنر سندھ کو چارج سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات کی تیاریاں تیز کر دیں۔ الیکشن کمیشن سندھ کے تمام دفاتر میں
हफ्ता और इतवार की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नए जारी होने वाले हुक्मनामे में कहा गया है कि अब हफ्ता और इतवार को भी तमाम दफातर खुले रहेंगे। आम इंतखाबात के तमाम मराहिल मुकम्मल होने तक मुलाजमीन और अफसरान की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। आम इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान होने के बाद MKM ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रुजू करने का फैसला कर लिया। ज़राए का कहना है MKM जॉइंट इलेक्शन कमिश्नर सन अली असगर सयाल की तब्दीली का मुतालबा भी करेगी। MKM का वफ़द जल्द चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक MKM की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने इलेक्शन कमीशन मेंबर निसार दुरानी के सूबे के इंतखाबात में अमल दखल न होने से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात भी रखे जाएंगे। MKM के मुतालबे पर गुज़श्ता दिनों इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान का तबादला किया जा चुका है। सियासी जमातों ने इंतखाबात के लिए कमर कस ली। पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालबा दोहरा दिया। शेरी रहमान कहती हैं कि 27 दिसंबर को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर लाड़काना में अजीमुल शान जलसे का इनेकाद किया जाएगा। चाहते हैं वक्त पर इंतखाबात हों और हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। मज़ीद तफसीलात शोएब मुख्तार की रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इंतखाबात की राह हमवार, सियासी जमातों ने हिकमत अमली तरतीब दे दी। पीपल्स पार्टी का लाड़काना से मुहिम का आगाज का फैसला। बिलावल हाउस में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक बार फिर इंतखाबात में लेवल प्लानिंग फील्ड देने का मुतालबा दोहरा दिया। शेरी रहमान का कहना था कि अफसोस है कुछ तंजीमें इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए ताखीरी हरबे अपना रही हैं। 27 दिसंबर से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। जब सारी तंजीमें या तो चुप थी या कोई अभाम इस सिचुएशन में लाना चाहती थी या राय फरार ढूंढ रही थी इलेक्शन से, पीपल्स पार्टी तो ऑलरेडी मैदान में है। आपने देखा चेयरमैन की कन्वेंशन शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी 27 दिसंबर को फैसला हुआ है बीबी शहीद की बरसी पर, वहाँ गड़ी खुदा बख्श से ये कैंपेन का इनेकाद होगा और चेयरमैन बिलावल उसको वहाँ से शुरू करेंगे। साबिक सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने चेयरमैन PTI को निशाने पर रख लिया। बोले जो दुनिया को जेल में भेज रहा था आज खुद जेल में पड़ा है। जो मावी की नफरत की इल्जाम तराशी की सियासत, एक दूसरे को नीचा दिखलाने की सियासत, या जो इंतकाम की सियासत है, जिस तरीके से कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को आप अभी भी देख रहे हैं कि उनके बयानात में, उनके इंटरव्यूज में इंतकाम आ रहा है कि जी मेरे साथ जिसने ये किया मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, या एक जो पहले था जिसने कहा कि मैं सारी दुनिया को जेल में भेजूंगा वो खुद जेल में पड़ा हुआ है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी का कहना था कि इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होते ही पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने इजलास बुलाया। तमाम लोग इस हाइब्रिड मीटिंग के अंदर मौजूद थे, बल्कि बलूचिस्तान के साथी यहाँ पर भी आए हुए थे। तो ये सीरियसनेस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। पाकिस्तान की आवाम को ये ज़रूर पैगाम देंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का, कि आइए हमें ज्वाइन कीजिए, इस जमहूरी अमल को मजबूत बनाइए, हमारा इंतखाब कीजिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना था कि मजलूम किसानों के साथ खड़े हैं, ज़राअत हमारी लाइफलाइन है। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। कराची के इलाके एलेंडर रोड के ग्रिड स्टेशन पर मेंटेनेंस के लिए 4 घंटों तक बिजली का शटडाउन किया जाएगा। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक इतवार को एलेंडर रोड ग्रिड स्टेशन पर मेंटेनेंस शटडाउन से ग्रिड स्टेशन से मुंसलिक सार्फिन को बिजली की फराहमी सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मुअत्तल रहेगी। जिन इलाकों में बिजली मुअत्तल की जा सकती है उनमें अब्दुल्ला हारून रोड, दाऊदपोता रोड, गार्डन, रेवाली सिनेमा, जामा क्लॉथ मार्केट और आराम बाग एरिया, एमेजिना रोड, आई चंद्रीगढ़ रोड, शाहराह फैसल समेत दिगर इलाके भी शामिल हैं। मेयर कराची की लियारी एक्सप्रेस वे को हैवी ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल करने की तजवीज़ पर वज़ीर आला ने कमेटी तश्कील दे दी। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की सदारत में कराची के ट्रैफिक मसाइल और ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के हवाले से इजलास हुआ। मेयर कराची की जानिब से लियारी एक्सप्रेस वे को हैवी ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल करने की तजवीज़ पर कमेटी कायम कर दी गई। मेयर कराची ने बताया कि लियारी एक्सप्रेस वे के बारे में कंसल्टेंट ने कहा है कि यह हैवी ट्रैफिक के लिए बना है। इस हवाले से वज़ीर आला ने कमेटी कायम कर दी जिसमें मेयर कराची, IG पुलिस, KDA और NHA के अफसरान शामिल होंगे। कमेटी 7 दिनों में तयन करेगी कि लियारी एक्सप्रेस वे हैवी ट्रैफिक के काबिल है या नहीं।
आपको बताएं कि एक्सपो सेंटर कराची में 18वां आलमी कुतुब मेला जारी है। तीसरे रोज भी शहरियों की बड़ी तादाद मेले का रुख कर रही है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। एक्सपो सेंटर में आलमी कुतुब मेला अपने उरूज पर, शहरियों की जोक दर जोक आमद का सिलसिला जारी। आलमी कुतुब मेले में किताबों के 330 स्टॉल्स लगाए गए हैं। कुतुब बहनों के ज़ौक के मुताबिक पसंदीदा मसनूआत, बेस्ट सेलर्स, नौजवानों के फिक्शन, रोमानवी, जुर्म और सस्पेंस, साइंस फिक्शन, बिजनेस, सेल्फ हेल्प और आर्किटेक्चर की किताबें रखी गई हैं। खरीदारों ने बुक फेयर के इनेकात को खुशआइंद करार दिया, जो किताबें खरीद कर मुस्तफीद हो रहे हैं। किताबों की तरफ लोगों का रुझान हम ये समझते हैं कि कम हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। रुझान बदलते जरूर हैं, लेकिन खत्म नहीं होते, मरते नहीं हैं। बदकिस्मती से दो मसाइल नज़र आते हैं कि एक तो लोगों में पढ़ने का रुझान है कम, और दूसरा ये कि किताबें जो हैं वो महंगी हैं, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो रही हैं। तो गवर्नमेंट इन चीज़ों को अगर गौर करे और इन चीज़ों की कीमत कम हो तो लोग किताब खरीद सकेंगे तो उनका शऊर बेहतर होगा। कुतुब मेले में शहरियों की बड़ी तादाद की आमद इस बात का सबूत है कि जदीद दौर में भी कुतुब बीनी का शौक़ ख़त्म नहीं हुआ। शहर कायद के बासियों की किताबों से मोहब्बत दीदनी है। 18वीं आलमी कुतुब मेले रात गए शहर भी जोक दर जोक में खींचे चले आ रहे हैं। इंटरनेशनल पब्लिशर की किताबें भी शुरका की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं। तफसीलात जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। आज बिल्कुल देखिए, इस वक्त मैं एक्सपो सेंटर कराची में मौजूद हूँ और 18वें बैनुल अक़वामी कुतुब मेले का आज तीसरा रोज़ है और कुतुब बीनी के शौकीन अफराद जो हैं, यकीनन उनकी आमदोरफ्त का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी व सारी है। शहरी यहाँ पर अपनी मन पसंदीदा किताब की तलाश में हमें दिखाई देते हैं और हॉल नंबर 1 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुछ ऐसे स्टॉल्स लगाए गए हैं जहाँ पर इंटरनेशनल जो पब्लिशर्स हैं उनकी किताबें जो हैं यहाँ पर नुमाइश के लिए भी पेश की गई हैं और यकीनन फ़रोख्त भी की जा रही हैं। और सबसे बड़ी खूबसूरत बात ये दिखाई देती है कि जो हमारे तालिब इल्म हैं वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि आज हफ्ते का रोज़ है, छुट्टी का दिन है। तो छुट्टी के दिन जो है शहरियों की आमद जो है यकीनन उनकी कतार दर कतार जो है आमद का जो सिलसिला है वो जारी है। एक तालिब इल्म इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, अपने मन पसंदीदा किताब की तलाश में हमें दिखाई दिए। मुझे बताइए कौन सी किताब की तलाश में है और आज का ये इतना खूबसूरत ये किताबों का मेला सजा हुआ है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं जो हूँ अपनी कैम्ब्रिज की स्टूडेंट हूँ मैं, तो मैं ऐसी अपनी सिलेबस की किताबें की तलाश में था। मैं यहाँ पे बहुत स्टॉल्स हैं और बहुत सी किताबों की किस्में हैं कैम्ब्रिज के रिलेटेड तो स्पेशली, और हमारे जो वो हैं पाकिस्तान स्टडीज़ के हिसाब से हिस्ट्री की बहुत बुक्स हैं जिससे हमारी नॉलेज बहुत बढ़ सकती है। तो मुझे बहुत अपनी जो है काम की किताबें मिली, और स्पेशली सिर्फ अगर हम सिलेबस से हट की बात करें तो फ़िक्शन, नॉन फिक्शन, देयर आर टन्स ऑफ बुक्स और बहुत अच्छे उनके ऑथर्स की हैं। क्लास 6, you name it, हर बुक्स हैं। I think it's a very good opportunity for students all over Karachi and all over Pakistan who want to come here and just find books and खूबसूरत सी बात जैसे उन्होंने कहा कि इंटरनेशनली पब्लिशर्स की किताबें यहाँ पर मौजूद हैं। कैम्ब्रिज के क्योंकि ये स्टूडेंट हैं तो उसी से मुंसलिक कुछ किताबें यहाँ पे जो हैं उसकी तलाश में ये यहाँ पर हैं। इसके अलावा जैसे कि उन्होंने कहा कि फ़िक्शन और नॉन फिक्शन की किताबें जो हैं यहाँ पर बहुत बड़ी वैरायटी में मौजूद हैं। तो ये कराची के बासियों के लिए एक खुशखबरी है, बिलखुसूस तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी है, ना कि सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए कि वो अपनी मन पसंदीदा किताब जो है यहाँ से इस कुतुब मेले से हासिल कर सकते हैं। जी, बैनुल अक़वामी कुतुब मेले का तीसरा रोज़ इख्तितामी मराहिल में दाखिल। तीसरे रोज़ एक्सपो सेंटर में शायकीन कुतुब का जमे गफ़ीर उमड़ आया। इख्तितामी औकात में भी शहरियों की आमद का सिलसिला जारी है। तफसीलात नमरा रियासत से जानेंगे। बिल्कुल जी, एक्सपो सेंटर में सजा ये 18वां आलमी कुतुब मेला अपने आबोताब के साथ जारी, और इस वक्त मेरे अक़ब में भी आप सूरत हाल मुलाहिज़ा कर सकते हैं। तीसरा रोज़ है और इख्तितामी मराहिल में है तीसरा रोज़ भी, लेकिन उसके बावजूद शहरियों की आमद का सिलसिला बदस्तूर जारी है। और मेरे अक़ब में भी आप सूरत हाल देख सकते हैं कि मुख्तलिफ 3 ये हॉल्स पर मुश्तमिल जो कुतुब मेला है, जिसमें 330 से ज़ायद जो है वो स्टॉल्स लगाए गए हैं। मेरे दाएँ जानिब हॉल 1 है और बाएं जानिब हॉल 2, और जबकि मेरे अक़ब में जो है वो हॉल 2 है और बाएं जानिब हॉल 3 है। लेकिन इन तमाम रास्तों में अगर आप देखें तो इस वक्त शहरियों की जो है वो बड़ी तादाद मौजूद है। इस वक्त ख़ासा रश यहाँ पे लगा हुआ है, और इसी रश में चाहे कम उम्र बच्चे हों, नौजवान तलबा हों या फिर बुज़ुर्ग अफराद हों, तमाम के तमाम यहाँ का रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तमाम ही
कुतुब बीनी के शौकीन दिखाई देते हैं और इसी सिलसिले के तहत जो वो यहाँ का रुख कर रहे हैं और मुख्तलिफ जो है वो किताबों में दिलचस्पी लेते दिखाई दे रहे हैं। उसमें बच्चों की किताबें हैं, कहानियों की किताबें, इस्लामी किताबें हैं और इसके साथ साथ तमाम मज़ामीन की इल्मी, अदबी, साइंसी तमाम किताबें यहाँ पर मौजूद हैं। और तीसरे रोज़ पे जो ये अहवाल है वो एक ख़ासा रश यहाँ पर लगा हुआ दिखाई देता है। एक अवाम का जो जम गफ़ीर है वो उमड़ के यहाँ पर हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है कि बड़ी तादाद में अवाम जो है वक्तन फ़वक्तन यहाँ का रुख कर रहे हैं और अभी तक सूरत हाल ये है कि बच्चे भी बड़े तमाम यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तीसरे रोज़ जो है वो गुज़िश्ता 2 रोज़ के निस्बत अगर देखा जाए तो एक बड़ी तादाद अवाम की यहाँ का रुख करती दिखाई दे रही है और लोग जो है वो किताबों में दिलचस्पी ले रहे हैं। जी।